بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گرمیوں میں بند جوتوں کا استعمال نظر کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے اور صبح نہار منہ کھانے سے انسان فٹ رہتا ہے اور بدن میں طاقت آتی ہے۔ ہری مرچ ایسی سبزی ہے جو عورت کو روزانہ کھلائی جائے تو عورت کے جوڑوں، پٹھوں اور جسم کے تمام دردوں کے لیے بہت مفید ہے۔ ڈپریشن سے نجات کے لیے ثابت اسپاغول 1 چمچ صبح نہار منہ اور 1 چمچ عصر کے وقت دودھ یا پانی سے لیں۔ اگر آپ اپنا معدہ بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کیا کرو۔ جو الائچی والا دودھ پیتا ہے اس کی موت کبھی بھی کسی لا علاج بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ جھریوں کے خاتمے کے لیے رات کو سوتے وقت ملائی کا لیپ کر لے، چہرہ صاف و شفاف ہو جائے گا۔ اگر شہد کی مکھی کاٹ لے تو درد والی جگہ پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو چھوٹی الائچی منہ میں رکھ کر چبا لیا کرو، پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ اگر شدید کھانسی کا مسئلہ ہو تو گڑ کو ٹافی کی طرح چوس کر کھانے سے کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکوریا جڑ سے ختم کریں۔ 15 دن تک 1 پیالی انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں، انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ زیتون کا تیل چہرے پر لگائیں، داغ دھبے مٹائیں۔ 1 چمچ مکئی کا آٹا، 1/4 چمچ شہد اور آدھا چمچ زیتون کا تیل ہم وزن لے کر اچھی طرح ملائیں۔ اس میں تھوڑا سا دودھ بھی شامل کر لیں۔ اس مکسچر کو داغ دھبوں پر لگائیں۔ ماہواری کی تمام تکلیف ختم۔ تخم گاجر 1 تولہ کوٹ کر پانی میں جوش دیں اور اس پانی میں براؤن شکر حسب ذائقہ ملا کر پئیں۔ اس سے حیض کھل کر آتا ہے اور تمام تکالیف رفع ہو جاتی ہیں۔ نسخہ برائے نظر کی کمزوری: سونف 50 گرام، بادام 50 گرام، مصری 50 گرام، دکنی مرچ 5 گرام۔ ان تمام ادویات کو باریک پیس کر 1 چمچ چائے والا صبح و شام استعمال کرو۔ اگر مچھلی طویل عرصے تک فریزر میں محفوظ رکھنی ہو تو اسے ایلومینیم فوائل میں لپیٹ کر رکھیں، اس طرح یہ بہت عرصے تک بالکل تازہ محسوس ہوگی۔ کھانے سے پہلے ہمیشہ تھوڑا سا نمک چکھنے کی عادت ڈالیں، اس سے انسان بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ سالن میں اگر غلطی سے نمک زیادہ ڈل جائے تو پریشان نہ ہوں، اس میں 1 چھلا ہوا آلو ڈال دیں، وہ سارے اضافی نمک کو اپنے اندر جذب کر لے گا۔ جو دودھ کو نیم گرم کر کے پیتا ہے اس کی ہڈیاں اونٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو اسے پلاسٹک کے برتن میں ڈال کر مت کھائیں، کیونکہ اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے۔ ناظرین، 7 دانے کشمش کے لیں اور سورہ فاتحہ 7 بار کشمش پر دم کر کے کھا لیں۔ 40 روز تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ ذہن کھلے گا اور حافظہ تیز ہوگا۔ ناظرین، پیشاب بار بار تنگ کرتا ہو تو 1 چھٹاک بھونے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اور بوڑھے لوگ اسے زیادہ دن تک استعمال کریں۔ انگور کا رس صبح نہار منہ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔
ब्लड प्रेशर का मसला हो या सांस लेने में दुश्वारी हो तो सौंफ का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। रोज़ाना सुबह लहसुन के 2 जुए और 1 चाय का चम्मच शहद खाने से ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहता है। घर में बची हुई कॉफ़ी को ज़ाया करने की बजाय लॉन में पौधों में डाल दें, ये बहुत अच्छी खाद का काम करती है। अगर आप मच्छर के काटने की वजह से तकलीफदेह खारिश का शिकार हैं तो उस जगह पर थोड़ा सा साबुन लगाएं, खारिश फौरन गायब हो जाएगी। जो भैंस का कच्चा दूध पीता है उसको कभी कमर के दर्द की शिकायत नहीं होती। हाथों और चेहरे के गैर ज़रूरी बालों से छुटकारा पाने के लिए हल्दी बहुत मुफीद है। हस्बे ज़रूरत हल्दी के पेस्ट में चंद कतरे नीम गरम नारियल का तेल शामिल करके इस पेस्ट को जिल्द पर इस्तेमाल करें। ये जिल्द के इजाफी और गैर ज़रूरी बालों की नशोनुमा को कम कर देगा और जिल्द भी नरमो मुलायम और निखरी निखरी दिखाई देगी। नाजरीन, सफ़ेद बालों के लिए प्याज बहुत मुफीद है। प्याज ग्राइंड करके पेस्ट बनाकर सर पर लगाएं और कुछ देर बाद किसी अच्छे शैम्पू से उसे धो लें। चंद दिन ऐसा करने से सफ़ेद बाल भी काले होने लगेंगे। दही के इस्तेमाल करने से मैदा ताकतवर होता है और यह दिल को मजबूत करता है। अगर आपका लोहे का फर्नीचर जंग आलूद हो गया है तो तारपीन के तेल को कपड़े पर लगाकर उसे साफ कर लें। अगर आप ये तसल्ली करना चाहते हैं कि अंडा ख़राब तो नहीं तो अंडे को ठंडे नमक मिले पानी में डाल दें। अगर वो तैरने लगे तो समझ जाएं कि अंडा ख़राब है और अगर वो डूब जाए तो समझ लें कि वो अंडा ठीक है। सोते वक्त अगर आपकी आंख से पानी आता हो तो समझ जाओ आपका दिमाग कमज़ोर है। चक्कर आने लगे हैं तो काले नमक वाला पानी पीने से चक्कर आना बंद हो जाते हैं। 7 दिन तक 7 अदद मुनक्के रात के वक्त आधा पाव दूध में भिगोकर सुबह खाने से दिमागी कमज़ोरी दूर हो जाती है। अगर किसी का बच्चा जिद करता हो और रोता रहता हो तो उसे चाहिए कि एक प्याला लेकर उसमें पानी डालकर उस पर या मुकीतू को 121 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़े और बच्चे को पिलाए। रोता बच्चा चुप कर जाएगा और कम से कम 21 दिन तक ये अमल ज़रूर करें। अगर लीमू का ज़्यादा रस हासिल करना चाहते हैं तो उसे ओवन में हल्का सा गर्म कर लें या फिर गर्म पानी में कुछ देर के लिए रख दें। सर दर्द का बेहतरीन इलाज, एक लीमू लें और उसे काटें, फिर उसको अपनी पेशानी पर मलें, सर दर्द ठीक हो जाएगा। अगर जिस्म की इजाफी चर्बी ख़त्म करनी है तो पानी में 3 चाय के चम्मच शहद और 1 चाय का चम्मच सेब का सिरका मिलाकर 1 माह तक पिएं, चर्बी गायब हो जाएगी। अगर आप अपने जिगर को तंदुरुस्त रखना चाहते हो तो बाज़ारी खाने और फास्ट फूड से जितना हो सके दूर रहें। छोटे कद से परेशान अफराद के लिए नुस्खा, घर में कुछ भी बनाएं। बांस की जड़ का सफ़ूफ किसी भी पंसारी की दुकान से ले लें, 1 या 2 चुटकी डाल दें। इंशाअल्लाह बांस की तरह कद तेज़ी से बढ़ने लगेगा। ये आज़मूदा नुस्खा है, बच्चों और बड़ों दोनों के लिए मुफीद है। अगर आप अपने मसाने बेहतरीन रखना चाहते हैं तो कच्चा प्याज ज़्यादा इस्तेमाल करें। जो बच्चे बिस्तर पर पेशाब करते हैं उन्हें पोस्ते आंवला में थोड़ा सा शहद मिलाकर सोते वक्त 1 चुटकी हमरा पानी खिलाना इस आदत को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है।
गिरते हुए बाल मर्दों ख़वातीन के लिए परेशानी का बायस बनते हैं, जो अपने बालों को बचाने के लिए हर वक्त फ़िक्रमंद रहते हैं। ये आसान सा टोटका गिरते बालों के लिए बहुत मुफीद है। 1 चम्मच दही, 1 अंडा और आंवले के पाउडर में 1 चम्मच तारा मीरा का तेल और 1 चम्मच कस्टर्ड ऑयल कुछ देर के लिए रख दें, फिर सर में अच्छी तरह लगा दें। 3 घंटों के बाद धो लें। हफ्ते में 1 बार करें, चंद दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। सन ब्लॉक लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आपके चेहरे पर झुर्रियाँ कम पड़ती हैं, सूरज से जिल्द झुलसती नहीं है और रंगत भी ख़राब नहीं होती। अपने दिमाग को अगर बेहतर रखना है तो 8 घंटे की नींद ज़रूर पूरी किया करें। फ्रिज से अगर सब्जियों और फलों की बू ख़त्म करना हो तो उसमें 1 चम्मच लीमू काट कर रख दें। कमज़ोर हाजमे वाले अफराद के लिए केला बहुत नुकसानदेह है और केला बलगम पैदा करता है। अपनी आंखों को हमेशा बेहतर रखना चाहते हो तो सोने से पहले अपने पाँव पर तेल की मालिश ज़रूर कर लिया करो। ऐसे बच्चे जिनको मट्टी खाने की आदत हो, उनको केला और शहद मिलाकर खिलाएं। उनकी मट्टी खाने की आदत छूट जाएगी। दुबले अफराद काले चनों को भून कर खाया करें, वो मोटे हो जाएंगे। अंडे को उबालने से पहले अगर पानी में थोड़ा सा नमक मिला लें तो अंडे का छिलका फटता नहीं। अगर आप अपने गुर्दों को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो सोने से पहले वॉशरूम से फारिग हो लिया करें। नाज़रीन, मोटी मोटी ख़वातीन अगर चंद दिनों में दुबला पतला होना चाहती हैं तो फिर अनार के रस में खीरे का रस शामिल करके इसे पी लिया करें। खरबूजा खाने के बाद थोड़ा सा नमक चाट लें तो इससे बदहज़मी नहीं होगी। अंगूर गुर्दे की पथरी से बचाते हैं। गले में सोजिश का मसला हो तो केला खाने से सोजिश ख़त्म हो जाती है। जिसको ज़्यादातर कब्ज़ की शिकायत रहती है वो बड़े गोश्त से परहेज़ किया करे। माल्टे के छिलके उबाल कर उनमें लौंग डाल दें और कमरे के अंदर रखने से कमरे में मच्छर नहीं आएंगे। अगर आपके घर में चियोंटियाँ और काकरोच बहुत ज़्यादा हैं तो इनसे छुटकारा हासिल करने का आसान तरीका ये है कि फर्श पर चाक से लकीर लगा दें, फिर देखें क्या होता है। पैदल चलने से गैस की शिकायत कम होती है और तेज़ रफ्तार चलना गैस को कम करता है। नाज़रीन, मज़ीद इस तरह के टोटके देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।